Good morning, students. Today I am going to start your poem. I am going to continue your poem, A Legend of the Northland. Stanza 3rd, page number 65. In the second stanza, we have seen that the northern people, how they use sledges, a vehicle which they used to run for the conveying their loads or passengers over snow and ice. They use a reindeer there to draw the sledge there. Now the third stanza. They tell them a curious story. I don't believe it's true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. In this stanza, meaning देखो, in line 1, they refers to the parents of the elders and them refers to the children or the younger generation. The elders of the Northland region tell a strange and interesting story to the younger generation. The poet says that he does not think that the story is true, but if he tells the story to the reader, maybe the reader could learn a lesson from it. The story gives an important message. अब यहाँ पर इस स्टैंजा में यहाँ पे जो दे वर्ड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर दे वर्ड बड़े लोगों के, एल्डर्स के लिए यहाँ पे दे वर्ड लिखा हुआ है और देम जो है यंगर पीपल के लिए लिखा हुआ है, यंगर जनरेशन के लिए. और यहाँ पे जो पोएट भी कह रही है कि उन्होंने बचपन में उनके बड़े उन्हें एक स्टोरी सुनाया करते थे जो उन्हें लगता है कि वो रियल स्टोरी नहीं है, मगर आज ये यहाँ पे जो पोएट हैं ये आपको ये स्टोरी सुनाने की इच्छा जाहिर कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं रीडर्स को स्टोरी सुनाऊं. शायद आप लोगों को इस स्टोरी से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज वो कन्वे करना चाहती है इस स्टोरी के हिसाब से. फोर्थ स्टैंजा. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. अब यहाँ पे स्टैंजा में सेंट पीटर मीन्स an apostle of Christ, a disciple or a follower of Jesus Christ, preaching to give a religious talk. The story is about Saint Peter. When Saint Peter used to live in the world and went around giving religious lectures to the people, just like all saints do, then an incident happened. अब क्या हुआ? यहाँ पे स्टोरी जैसे स्टार्ट होती है उसमें एक संत रहते हैं, वो पूरी दुनिया घूमते हैं और अपने जो भी प्रवचन से पूरी दुनिया को डिलीवर करते हैं, रिलीजियस जो लेक्चर्स हैं दुनिया पीपल्स को देते हैं. उस दौरान उनके साथ एक वाक़या घटता है. वो क्या, वो अब आगे स्टैंजा में वो पोएट हमें बता रही है. He came to the door, fifth stanza, he came to the door of a cottage in traveling around the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth यानी a fireplace where you do cooking. खाना बनाने की जगह उसे hearth कहते हैं. Explanation. When Saint Peter was going around the world giving religious lectures to the people, he reached the door of a cottage where a small woman was making cakes. She was baking the cakes in the fireplace. अब ये संत जो है घूमते हुए एक अपने रिलीजियस लेक्चर्स देते देते एक दरवाजे के सामने आके खड़े हो जाते हैं. वहाँ पर जो एक वुमन है, छोटी सी वुमन, अब केक्स बनाती है, केक्स बेक करती है, फायर प्लेसेस में वो बेकिंग का काम करती है. सिक्स स्टैंजा. एंड बीइंग faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from the store of the cakes to give him a single one. Faint means to be weak and बेहोश हो जाना. Faint means. And explanation. As Saint Peter had not eaten anything the entire day, he was very hungry and was feeling weak. So he went to this woman who was baking cakes and he asked for one cake out of the many cakes that she had baked. अब यहाँ पर जो संत हैं वो भूख के मारे बिल्कुल पूरे दिन भर बिना खाए वो घूम रहे थे. अब उन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही थी और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे थे अपने आप को. तो इस औरत के यहाँ जहाँ वो अपना बेकिंग का काम कर रही थी, खाना बना रही थी, केक्स वगैरह बेक कर रही थी, उसके बाद बहुत सारे केक्स थे उसने बेक कर रखे थे, उसमें से वो छोटा सा केक का पीस वो संत जो है उनसे मांगते हैं. सेवेंथ स्टैंजा. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट as it
baking lay, she looked at it and thought it seems too larger to give away. अब यहाँ पे स्टैंजा में क्या हो रहा है? The woman, explanation, the woman was selfish. She did not give cake from the store. Instead, she started making a very small cake for the Saint Peter. She did not want to share her things, but when she put the cake for baking, she looked at it and thought that this cake was too big to be given to someone. अब ये जो वुमेन थी, जो औरत थी जिससे संत ने एक केक मांगा था अपने स्टोर से, तो ये औरत बहुत सेल्फिश थी, बहुत ही लालची, लोभी थी, स्वार्थी थी ये औरत। ये उन केक स्टोर में से कुछ केक देना नहीं चाहती थी। उसके बदले उन्होंने क्या करा, एक छोटा सा केक बेकिंग ट्रे में डालकर उनके लिए बनाया। वो बना रही थी, वो अपनी कोई सी भी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। जब वो केक बनाते समय उसको जब बेक करने के लिए डाला, तो उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि ये भी जो उन्होंने केक बनाया है छोटा, वो भी उन्हें बहुत बड़ा लग रहा था। अब स्टैंजा 8, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. अब needed means to make a tough dough from flour. द लिटिल माइजर वुमेन, अब ये जो छोटी सी औरत थी जो बहुत ही कंजूस थी, वो क्या विचार कर रही थी? जब उसने सेकंड केक बनाया, तो उसने जब उसने सेकंड केक बना के जब वो बस बेकिंग ट्रे में जब वो डालती है, तो उसे लगता है कि यार ये केक भी, अब ऐसा लग रहा था कि वो छोटा केक बनाया, मगर जब बेक हो रहा था उसे लगा कि ये केक तो पहले वाले केक से भी बड़ा दिख रहा है। अगेन शी नॉट, वो फिर वापस उसने सोचा कि ये केक भी उसके लिए सही नहीं, वापस वो तैयार करती दूसरा स्मॉलर केक बनाने के लिए संत के लिए। एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश अगेन, द लिटिल माइजर वुमेन थॉट दैट द केक वाज टू बिग टू बी गिवन अवे, सो शी स्टार्टेड मेकिंग अनदर स्मॉलर केक। व्हेन शी लुक्ड एट दैट केक, शी अगेन फेल्ट दैट इट वाज अ बिग एज द प्रीवियस वन। अगेन शी वाज नॉट रेडी टू गिव द स्मॉलर केक टू द सेंट पीटर। स्टैंजा 9, then she took a tiny scarf of duff and rolled it flat and baked it in a tin of a wafer, but she couldn't part with that. Scarf means small amount. Explanation, the third time she took a very small amount of her duff and rolled it. The poet says that she rolled and rolled to lay emphasis on the fact that she rolled the duff and made it very thin like a wafer and baked it, but she was so greedy that she couldn't give that thin piece of bread to the सेंट। अब थर्ड टाइम भी जब उसने, उस लेडी ने छोटा सा पोर्शन उस आटे में से लिया और रोल किया, वो ऐसा रोल किया जैसे कि थिन वेफर बिस्किट जैसा पतला केक उसने बनाया, मगर वो इतनी ग्रीडी थी, इतनी स्वार्थी सेल्फिश लेडी थी वो, कि वो इतना थिन पीस भी उस संत को देने को तैयार नहीं थी। For she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. Up explanation, the woman reasoned that when she ate the cakes, she felt that they were very small, but if she had to give them to someone, she felt that they are too big to give away. She put all the cakes on the shelf of her kitchen and then she did not give any cake to the Saint Peter. अब जब वापस उसने जब केक बनाया, तब उसके मन में वो लगा कि ये थिन केक भी वो देने को तैयार नहीं थी। तो उसके मन में क्या रीज़न बताया उसने, वो कहती जब मैं केक खाती हूँ तो मुझे वो जो केक होते हैं वो बहुत छोटे लगते हैं, मगर यही अगर मैं किसी को देना चाहूँ, दे नहीं हूँ, तो मुझे वो छोटा पीस भी बहुत बड़ा लगता है। इसलिए वो क्या कर रही हैं, उसने सारे जो केक्स उसने बनाए थे छोटा समझकर, उन सबको वापस किचन शेल्फ में रख देती है और एक भी केक का पीस सेंट को नहीं देती है। आगे हम नेक्स्ट स्टैंजा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।